Assalamu alaikum students. How are you all? Okay. Today we are going to start our first lesson of grammar. This is parts of speech. Ji, at page number 5. This is also included in your homework, so listen about it carefully and concentrate fully. Do you know about parts of speech? Parts of speech. Speech क्या है? First of all, you must know what's speech. Speech is everything that we speak. Speech क्या होती है? तकरीर, oral words, मतलब oral description. The description of everything in words is called speech. हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो भी वर्ड्स बोलते हैं, वट एवर द वर्ड्स वी स्पीक इन आर डेली रूटीन आर स्पीच. हम किस तरह अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से कन्वे करते हैं, एक दूसरे तक कन्वे करते हैं, कैसे किसी से अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं थ्रू आवर स्पीच, अपनी टॉक्स के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए. तो उस गुफ्तगू में, उस कॉन्वर्सेशन में वी यूज़ डिफरेंट वर्ड्स. अब वो डिफरेंट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक, अ वेरी सिंपल सेंटेंस, दिस इज़ माई बुक, वेयर आर यू गोइंग, what are you doing? All these words, quite simple words, all these words are quite simple, but these simple words make meaningful sentence. Or वही words, the constellation of words making meaningful sentence is called speech. अब उस वर्ड में जो भी हम गुफ्तगू करते हैं, जो हम बोलते हैं, उन वर्ड्स में जो हम डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं, these words are the different parts of speech. For example, where are you going? She is a girl. अब simple sentences है ना, she is a girl. इसमें she क्या है? She is pronoun. Is क्या है? Helping verb है. A क्या है? Article. And girl is a noun. तो ये जो डिफरेंट चीज़ें जिनसे मिलके हमारा सेंटेंस बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट दैट कि ये है क्या. वी मस्ट बी फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब यहाँ आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन हैं, उनको आपने पहले पढ़ना है, उनको मतलब उनकी डेफिनेशन है, इसको आपने पढ़ना है और समझना है. फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगी कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करना है. ओके, फर्स्ट वन इज नाउन. डू यू नो अबाउट नाउन? नाउन इज डन इन ग्रेड 1 में आपको करवाया जाता है नाउन प्रोनाउन. क्या होता है नाउन? जी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स अ नाउन? यस, Azwa Adil. Azwa Adil, unmute yourself and tell what's A a noun. noun is a name of anything, a person, animal, or place. See, noun basically, beta, is the, this is also mentioned in your book. Noun is the naming word. What's the naming word? Agglomerative. Naming word means the name of what? Name of anything. Name of person, animal, object, place, situation, quality और idea. यानी किसी भी चीज का नाम, person, place, thing, quality, idea, situation, किसी के भी नाम को हम noun कहते हैं. So in other words, we may say that noun is the name of anything. Noun is the name of anything. Maybe a person, maybe a animal, object, place, situation, quality, कुछ भी हो. Naming word है noun. ठीक है? Then comes verb. Gee, what's a verb? Yes, Azka.
अस्का अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स अ वर्ब? टीचर, वर्ब किसी काम के करने को कहते जी, वर्ब इज द एक्शन, काम। वर्ब क्या है? एक्शन. हैं Verb एक्शन। is basically it is an action. It shows an action. It is an action word जो हमें बताता है कि काम, क्या काम हुआ है। यानी अब verb क्या है? It is the action. Verb is the action. For example, fish live in water. We walk to school. अब इसमें इन एग्जाम्पल्स में देखें आप, fish live in water. Live क्या है? रहना. It is a verb. We walk to school. We walk to school. Walk करना, चलना. It is again it is a verb. Walk करना क्या है? चलना. It is a verb. अब इसी तरह हम कह सकते हैं they look tired. He is a proud man. तो इसमें भी it is a state of being कि वो they look tired, वो थके हुए दिखाई देते हैं. They look tired, वो महसूस होते हैं. Looked or seemed tired, appeared tired. He is a proud man. तो यहाँ पे भी वर्ब यूज हो रहा है. तो जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताए वो भी वर्ब है, और जो किसी की स्टेट, किसी की हालत बयान कर रहा है वो भी वर्ब है. अब there are so many verbs we use in our language. Eat, sleep, go, jump, write, read. All these are different kinds of verbs. Verbs है ना मुख्तलिफ. तो ये सब है वर्ब. अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, नाउन, वर्ब, एंड थर्ड वन इज प्रोनाउन. यस, व्हाट्स अ प्रोनाउन? व्हाट्स अ प्रोनाउन? यस, मोहम्मद अहमद, unmute yourself and tell what's pronoun. टीचर जो नाउन के सब्स्टिट्यूट यूज होता है, Yes. जिससे नाउन रिप्लेस होता है. जी बेटा, जो नाउन की जगह यूज होता है. प्रोनाउन यूज इज हो अ जाता है. वर्ड यूज्ड as a टीचर जैसे कि ही, substitute for a noun replaced by a pronoun is called its antecedent. ये थोड़ी यस. टफ लिखी हुई है, मुश्किल है थोड़ी आपके लिए. आप सिंपली यहाँ नोट डाउन कर लें, पेंसिल से नोट कर लें. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, आपसे ये आप पूछना है, लिख लें, क्लासेस इन यूज्ड जैसे इन कब तक प्लेस होनी है. ऑफ अ नाउन. इसको आप यहीं पे नोट कर लें. नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन की जगह यूज होता है. अब हम किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय, अली इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, अली कम्स टू स्कूल इन टाइम, अली does his homework regularly, अली learns his lesson daily. तो हम बार बार वो वर्ड अली क्यों रिपीट कर रहे हैं? To avoid the repetition of the word Ali, we use some other word. अब हम क्या वर्ड यहाँ यूज करेंगे? He. तो वो हम कहेंगे अली इज अ गुड बॉय, ही कम्स टू स्कूल इन टाइम, ही लर्न्स हिज लेसन डेली. तो अली की जगह जो हमने वर्ड किया यूज, दैट इज अ प्रोनाउन. एंड व्हाट इज इट? द वर्ड यूज्ड हियर, इट इज ही. इसी तरह प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी. ऑल दीज आर pronouns. Okay, now look at the example. Tony says that he has finished the work. The children are reading the books they bought yesterday. अब इन दोनों sentences में he और they ये क्या हैं? He and they are the pronouns because they are used in place of a noun. Now comes adjective. Adjective बेटा, इसमें D silent होता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. डी साइलेंट होता है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. जी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ग्रेड 4 में मेरा ख्याल है. आई थिंक यू हैव read about adjective in grade 4. क्या होता है adjective? Adjective is the quality of something. और यहाँ पे आप जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज adjective और adverb आप लोग मोस्टली
मिक्स कर लेते हो। सो आपको यहाँ अंडरलाइन करने की जरूरत है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, जो भी है बेटा आपके हाथ में पेंसिल या पेन, जल्दी से इससे अंडरलाइन कीजिए। दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, इसको आपने अंडरलाइन करना है। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। Keep it in your mind. What is adjective? A word that qualifies a noun or a pronoun. इसको अंडरलाइन करना है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। अब उसमें आपको एग्जांपल्स क्या गिवन है? The tall trees look majestic. The tall trees look majestic. The paintings are priceless. अब पेंटिंग्स आर प्राइसलेस। अब इसमें टॉल देखें, टॉल किसको का मतलब क्या है? लंबे दरख्त, मैजेस्टिक, शानदार नजर आते हैं। आप हिल साइड एरियाज में जाएं, वहां पे आपको टॉल ट्रीज ही नजर आते हैं एंड दे लुक वेरी ग्रेसफुल, वेरी मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट लुक देते हैं। और इसी तरह द पेंटिंग्स आर प्राइसलेस, पेंटिंग्स आर प्राइसलेस यानी उनकी कोई कीमत नहीं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। दीज आर डिस्क्राइबिंग नाउन। अब यहाँ पे टॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ट्रीज को। ट्री इज अ नाउन। प्राइसलेस, प्राइसलेस यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। द पेंटिंग्स आर प्राइसलेस, प्राइसलेस अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। तो पेंटिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, पेंटिंग्स इज अ नाउन। अब आगे देखिए, now come adverb. Adverb क्या है? An adverb is a word that modify or describe a verb, adjective or another adverb. अब इसमें आपने अंडरलाइन करना है क्या? An adverb is a word that modifies or describe. आप modifies को रहने दें, आपने सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है। An adverb is a word that describes a verb. डिस्क्राइब, यहां से आपने अंडरलाइन करना है। डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आपने लर्न भी करना है बेटा। डेफिनेशंस आपको लर्न होंगी तो आप आगे एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन। जी, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? इट डिस्क्राइब्स अ, इस पे आप लिख लें, एडवर्ब describes a verb, ये पहले वाला छोड़ दें, यहां से बस अंडरलाइन करें। इट adverb describes a verb, adverb describes a verb, an adjective or another adverb। ठीक है, for example, speak slowly, this is very good, she eats extremely slowly। now look at the examples, speak slowly, आहिस्ता बोलो। अब स्लोली, यहाँ आहिस्ता बोलना, तो स्लोली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली डिस्क्राइब कर रहा है बोलने को, कि आहिस्ता बोलो। बोलना क्या है? इट इज वर्ब। यस, स्पीक इज अ वर्ब और इसको डिस्क्राइब कर रहा है स्लोली। अब आगे देखिए, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। अब इसमें दिस इज गुड, ये अच्छा है, गुड क्या है? गुड इज एन एडजेक्टिव। बेटा अंडरलाइन करो और साथ साथ मेंशन करो ऊपर। आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन करें और ऊपर जैसे मैं बता रही हूँ, ऊपर आप पेंसिल से मेंशन करें। जैसे आपने स्लोली लिखा है, स्लोली इन बोल्ड है, लेकिन ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्पीक को। तो आप स्पीक को अंडरलाइन करें और ऊपर उसके लिखें, ये क्या है? वर्ब। अब दिस इज वेरी गुड, गुड क्या है यहाँ? एडजेक्टिव। गुड को अंडरलाइन करें और ऊपर लिखें एडजेक्टिव, ADJ। खाली AD काफी नहीं है, साथ J लिखेंगे तो आपको पता चलेगा एडजेक्टिव है, और अगर AD के साथ V आए देन इट इज एडवर्ब। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखें, वेरी इज एन एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग गुड, विच इज एन एडजेक्टिव। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, शी ईट्स एक्सट्रीमली स्लो। अब हम एक्सट्रीमली को थोड़ी देर के लिए निकाल दें सेंटेंस से। शी ईट्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता खाती है, वो आहिस्तगी से खाना खाती है, वो बहुत स्लो खाती है। शी ईट्स स्लोली,
वो आहिस्ता आहिस्ता खाती है। तो अब यहाँ पे आहिस्ता खाना, तो स्लोली क्या है? स्लोली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ईट्स को। जैसे ऊपर था ना, जैसे ऊपर था स्पीक स्लोली, इसी तरह यहाँ पे है ईट स्लोली, शी ईट्स स्लोली। तो ईट स्लोली इज डिस्क्राइबिंग ईट्स। ईट्स है खाना, इट्स अ वर्ब, ईट्स वर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है स्लोली। ठीक है, अब स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है एक्सट्रीमली। सो एक्सट्रीमली हियर अनदर एडवर्ब। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। स्लोली को अंडरलाइन करें बेटा और इसके ऊपर मेंशन करें एडवर्ब, एडीवी। स्लोली इज एन एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग ईट। और अब एक्सट्रीमली भी एक और एडवर्ब है, एक्सट्रीमली भी एक और एडवर्ब है। इट इज अनदर एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग स्लोली, के बहुत ही ज्यादा स्लोली खाती है। शी ईट्स एक्सट्रीमली स्लोली। ठीक है, अब आपके ऊपर डेफिनेशन में आपने देखा था एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। पहले में वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरे में एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है और तीसरे में अनदर एडवर्ब इसको स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, नाउ कम्स टू प्रेपोजिशन। जी, प्रेपोजिशन भी, preposition is also an important part of our speech. Preposition क्या है? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to govern it. Preposition वो word है जो हम किसी noun या pronoun से पहले लगाते हैं उसको गवर्न करने के लिए, यानी उसकी लोकेशन या उसके एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसमें आप देखें कि अगर हम कहते हैं अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, बुक किताब, बुक टेबल पर है। ऑन हमें क्या बता रहा है कि बुक टेबल पर है। इसी तरह हम कहते हैं द कैट इज सिटिंग बिसाइड द चेयर, कैट इज सिटिंग बिसाइड द चेयर, चेयर के नजदीक बैठी है। द पेन इज अंडर द टेबल, पेन टेबल के नीचे है। तो जो वर्ड्स हमें किसी चीज की लोकेशन या पोजीशन के बारे में बता रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि वो वर्ड्स का उसके साथ कैसे एक्शन लिंक है, तो वो दैट इज अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टे फॉर लंच, प्लीज स्टे मेहरबानी करके रुक जाइए, फॉर लंच लंच के लिए। अब यहाँ पे फॉर लंच, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है जो हमें बता रही है कि लंच के लिए रुकना है। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, टू मी, मुझे। ही रोट अ लेटर टू मी, अब इसमें टू क्या है? प्रेपोजिशन है। दे सिंग इन हार्मनी, इन हार्मनी मीन एक ग्रुप में, एक स्कोर में, एक सेम आवाज में, एक ग्रुप में सिंगिंग करना, एक आवाज देना। दे सिंग इन हार्मनी, यानी वो यकसा आवाज में एक साथ गाते हैं। तो ये वर्ड्स फॉर, टू, इन, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। देन कम्स कंजंक्शन। कंजंक्शन बेटा आपने पढ़े हैं, आई थिंक ग्रेड 5 में आपने कंजंक्शंस भी पढ़े हैं। What is a conjunction? Conjunction is a word used to connect words or group of words. जी, या आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं व्हाट्स अ कंजंक्शन, पेंसिल से साथ मेंशन कर लें। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड। क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड। अगर आप ये इतनी लंबी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन नहीं याद करना चाहते तो सिंपली आपको सिंपल वर्ड्स में पता होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में याद होना चाहिए कि ये क्या है। बिकॉज ये बेटा मैं कल आपसे सुनूंगी, पहले मैं आपसे कल इन वर्ड्स के बारे में सुनूंगी, फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। बिकॉज जब तक आपको उनकी डेफिनेशंस नहीं पता आप आगे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और एक्सरसाइज आपके होमवर्क में इंक्लूडेड है। कंजंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है। और कनेक्टिंग वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है।
इट इज अ कंजंक्शन। जैसे जॉन एंड पीटर वेंट टू स्कूल बट ग्रेस स्टेड एट होम। अब यहाँ दो कंजंक्शंस यूज हो गए हैं, जॉन एंड पीटर, दो को ज्वाइन किया, एंड और बट क्या है, इट इज अनदर कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। बट ग्रेस स्टेड एट होम, लेकिन ग्रेस घर पर रहा। Look at the next example. Because he was naughty, his parents punished him. अब इसमें दो sentences को join कर रहा है. Because he was naughty एक अलग sentence है, वो शरारती था. His parents punished him, उसके parents ने उसे punish किया. अब इन दोनों को join कर रहा है because क्योंकि वो naughty था तो उसके parents ने उसे punish किया. Then comes interjection. Interjection क्या है ये आपने शायद नहीं पढ़ा अभी. It's a new expression for you. What's an interjection? Yes, interjection is a word that expresses strong emotion. It is often followed by an exclamation mark and a new sentence, thus forming a sentence by itself. अब इसमें आपने लिखना है interjection is a word that express strong emotions. इसमें आप यहाँ इसको underline करें, that express strong emotions or feelings. Interjection is a word that express strong emotions or feelings. अब ये strong emotions और feelings खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं. खुशी या गम के मौके पर जो अल्फाज बेसाख्ता हमारी ज़बान से निकलते हैं, these are called interjections. Interjection के फौरन बाद हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक सीधी लाइन और उसके नीचे डॉट लगाते हैं, एक लंबी लाइन और उसके नीचे डॉट लगाते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. अब इंटरजेक्शन क्या है? द वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ जॉय और सॉरो. ये आपने लिख लिया है बुक्स पे. बेटा कल मैंने आपसे डेफिनेशन सुननी है. Interjection is a word which express strong feelings or emotions of joy or sorrow. और अब इसकी examples देखें. Oh, look at the time. Oh, time को देखो. Hurrah, we have won the match. Hurrah, we have won. हम जीत चुके हैं. अब इन दोनों sentences में देखें, ये end पे exclamation marks हैं. Exclamation mark इंटरजेक्शन के एंड पे लगते हैं, इंटरजेक्शन के बाद फौरन बाद भी लगते हैं. ठीक है. जब आप खुशी या गम के मौके पे कोई भी सेंटेंस बोलते, जैसे आप फौरन बोलते और वो मीनिंगलेस होते, मतलब उन वर्ड्स का कोई समटाइम्स मीनिंग नहीं होता. जैसे आपने कहा ओ, हुर्रा, अलास, वेल डन, वाओ, ब्रेवो, ये वर्ड्स हम समटाइम्स अपने सडन एक्सप्रेशंस में बोल जाते हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो रिलेट कर रहे होते हैं बाकी की हमारी बात को. तो ये वर्ड्स, ये सब वर्ड्स, ये क्या कहलाते हैं? ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. आपको आज सारे ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं. यू हैव टू लर्न ऑल दीज. और इनकी कल मैं पहले आपसे डेफिनेशन सुनूंगी और डेफिनेशंस के बाद बेटा हम इसको आगे फर्दर करेंगे. एक्सरसाइज